बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the science class. I hope you all are fine. Dear students, today we are going to do the exercise of chapter number 4. As our chapter number 4 is completed now, so today we will do the exercise of this chapter. So dear students, first let's open your books. Dear students, open page number 62. On page number 62 we are going to do the question number 2 here. Question number 1 हम नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है. So we are going to start from question number 2 on page number 62. Question number 2 is read the following statements. Put tick for correct statements and cross for incorrect statement. Here you have given some statements. First you have to read them very carefully. आप इसे बहुत अच्छे से रीड करें, अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर क्या बताया गया है, और अगर वो स्टेटमेंट है करेक्ट सो यू विल पुट टिक, यहाँ पर हम टिक कर देंगे, और अगर वो चीज़ रॉन्ग है तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. So the very first statement I am going to read. Liquids have definite shape. Liquids की जो shape है वो fixed होती है, definite होती है. So is this correct statement? No, this is wrong. As we know कि जो liquids होती हैं उनकी shape कभी भी fixed नहीं होती, वो change होती रहती है according to the container. So this is wrong. हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. Let's move to the second statement. Water is the gaseous state of matter. Water is the gaseous state of matter. Gaseous यानी गैस. यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो वाटर है वो मैटर की गैसियस स्टेट है, यानी कि वाटर एक गैस है. So is this true? No, this is wrong because we know that water is the liquid. Water liquid है, गैस नहीं है, बट यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि गैस है. So this is also a very wrong statement. हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. Third statement. Air has a definite shape. एयर की शेप डेफिनेट होती है यानी फिक्स्ड होती है. सो इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज वी नो दैट एयर इज़ अ गैस, और गैस जो होती है उसकी शेप फिक्स नहीं होती. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 4 इज वी आर एबल टू आइडेंटिफाई liquids because of their fixed shape. We are able to identify liquids because of their fixed shape. हमें liquids का कैसे पता चलता है? उनकी fixed shape की वजह से. So is this true? Wrong. This is also wrong because liquids don't have a fixed shape. हमें पता है कि लिक्विड्स को हम जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी शेप का होता है. लिक्विड्स की कोई ख़ास शेप नहीं होती, चेंज होती रहती है. सो ये रॉन्ग है. हम यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे. वी हैव अ लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज़ कॉल्ड मैटर. किसी भी चीज़ की अगर स्पेस होगी और उसका वेट होगा सो वो मैटर है. इज़ दिस ट्रू? येस, वेरी ट्रू. ये बिल्कुल ठीक है. मैटर वही चीज़ है जिसका वेट भी होता है और वो एक ख़ास स्पेस कवर भी करता है. सो हम यहाँ पर टिक करेंगे. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डन. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3. Select the correct answer from the following choices and encircle it. You have given statements and you have three options. आपने एक ऑप्शन जो कि करेक्ट है उससे हम सर्कल करेंगे. I am going to read the very first statement. Put your fingers on this statement, everyone. In how many groups can the material
things be divided? It means कि मटेरियल को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? ऑप्शंस है 3, 2, 4. So we know that material have 3 groups: solid, liquid and gas. So this is correct word. Let's circle this. Let's move to the next statement. Statement number 2 is, which state of matter is not visible to us but we can feel it? It means कि ये जो आपके सामने states of matter दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी state है matter की जो हमें दिखाई नहीं देती? Visible का मतलब होता है दिखाई देना, नॉट विजिबल हमें दिखाई नहीं देती बट हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं. ऑप्शंस: गैस, सॉलिड, लिक्विड. गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, इन तीनों में से अब आप बताएंगे कि कौन सी स्टेट है जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देती. वेरी गुड, दिस इज़ गैस. क्योंकि गैस जो है वो हम देख नहीं सकते, लाइक एयर है, हम उसे देख तो नहीं सकते बट वी कैन फील इट. सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है. सो इसे हम सर्कल करेंगे गैस को. स्टेटमेंट नंबर 3, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम? कौन सी मैटर की स्टेट है जिसकी शेप भी फिक्स्ड है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड? And we all know that this is solid. Solid has a fixed shape and a fixed volume. And we have the last statement of this question, and that is, in how many states does water exist naturally? Water जो है वो naturally कितनी state में हमें मिलता है? 1, 2 या 3? And we know that कि water जो है वो 3 state में exist करता है, जैसे आइस में सॉलिड और लिक्विड में वाटर और गैस में वाटर वेपर्स. सो वी विल सर्कल 3. ओके, नाउ ओपन पेज 63. वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 63. लेट्स डू दिस. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. और इसे कंप्लीट कैसे करना है? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस ये गिवन है और हमने इन तीनों की शेप और वॉल्यूम इनके बॉक्स के नीचे लिख लेना है. जैसे सॉलिड है तो उसकी शेप कैसी है वो यहाँ लिखेंगे, सॉलिड का वॉल्यूम कैसा है वो यहाँ, लिक्विड्स की शेप कैसी है वो यहाँ और उसका वॉल्यूम कैसा है वो यहाँ. इसी तरह गैसेस का. सो लेट्स राइट देम. सो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से लिख लेंगे जैसे सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है, सो हम यहाँ पर डेफिनेट लिखेंगे. लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती, हम लिखेंगे नॉट डेफिनेट. और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, सो वी विल राइट डेफिनेट. गैसेस की ना तो शेप डेफिनेट है ना वॉल्यूम, तो हम दोनों बॉक्सेस में लिखेंगे नॉट डेफिनेट. सो इस तरह से क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर लेंगे. सो दिस वाज आवर वर्क ऑफ टुडे. आई होप आज के वर्क की आपको समझ आ गई. इसे आपने अपनी बुक पर ज़रूर करना है. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डायरी ऑफ टुडे. Students, your diary is exercise page 62 and 63, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6. ये हम आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.